یہ ایک فیس بک پوسٹ ہے لینڈسکیپ اور ایک ہے اسکیئر. ٹھیک ہے، آپ یہ اسکیئر والا سائز جو ہے وہ یوز کر لیں. اسکیئر والے سائز کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اسکیئر والا سائز 1080 بائی 1080 فیس بک پہ بھی چل جاتا ہے، انسٹاگرام پہ بھی چل جاتا ہے، اور اس طرح لنکڈ ان اور باقی جو سوشل پلیٹ فارم ہے سب پہ چل جاتا ہے. یہ جو لینڈسکیپ ہے یہ فیس بک پہ تو بڑا اچھا رہتا ہے، لیکن انسٹاگرام وغیرہ پہ سائڈ سے کٹ جاتی ہیں چیزیں. تو یہ 1080 بائی 1080 والا یوز کر لیتے ہیں ہم. اوکے جی. تو یہاں پر اب ہم سرچ کیا کریں گے؟ یہ ایک ڈیزائن میرے پاس آ گیا، بڑا اچھا ڈیزائن ہے، خود ہی آ گیا یہ. اوکے. آپ جب پوسٹ بنائیں گے تو آپ یہاں سرچ کریں گے سوشل میڈیا مارکیٹنگ. تو آپ کے سامنے بہت ساری پوسٹیں آ جائیں گی، ان میں سے اچھا سا ڈیزائن آپ سلیکٹ کر لیجیے گا. فری والے میں اگر اچھا ڈیزائن آپ کو مل جائے تو مجھے بھی بتا دیجیے گا، میں بھی یوز کروں گا وہ. پرو والے میں زیادہ مل جائیں گے اچھے ڈیزائن. اب فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک پوسٹ ہے جی، یہاں اسے لکھا ہوا ہے وی آر کریٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی ایکسلریٹ یور بزنس گروتھ ود آر ڈیجیٹل مارکیٹنگ سولوشن اور سروسز سرچ انجن پے پر کلک سوشل میڈیا ای کامرس. ڈیجیٹل مارکیٹنگ والے بندے کے لیے بالکل صحیح ہے یہ پوسٹ. وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنا نمبر لگا کے لگا دے، سیدھا سیدھا کنٹینٹ بھی بڑا زبردست لکھا ہوا ہے. آپ بھی دیکھ لو، شاید کوئی پلے پڑ جائے. اوکے. آپ نے پوسٹ بھی بنانی ہے آج ایک، بناؤ. یہ کوئی ڈاکٹر صاحب لگ رہے ہیں. اب آپ لوگوں میں سے کچھ اسٹوڈنٹس کیا کریں گے، اس طرح کی پوسٹ اٹھائیں گے، اچھی اچھی پوسٹیں ساری چھوڑ کے اس طرح کی کوئی پوسٹ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، جس پہ سرکل بنے ہوں گے گول گول، وہ ڈاؤن لوڈ کر کے گروپ میں بھیج دیں گے. تو یہ کام نہیں کرنا، اچھا سا ڈیزائن سلیکٹ کر لیں. اچھا جی، تو ڈیزائن جو ہے وہ اچھے سے اچھا سلیکٹ کریں آپ لوگ. اپنی مرضی سے اس میں ڈیزائن میں چینجنگ بھی کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کینوا فری ہے تو برا سا ڈیزائن یوز کر لیں گے. اپنی مرضی سے آپ چینجنگ کر لیں، جو مرضی اس میں چیز ختم کریں ایڈ کریں آپ کر سکتے ہیں. اب یہ کیا ہے، یہ ایک پوسٹ ہے نا. ٹھیک ہے. اب یہ جو پوسٹ ہے اگر اس کو میں دیکھوں تو آپ میں سے کوئی بھی اس کو کریٹ کر سکتا ہے. کیسے کریٹ کریں گے؟ وائٹ پیج اس نے لیا ہوا ایک، آپ بھی وائٹ پیج لے لیں. اس کے بعد یہ اس نے اوپر لکھا ہوا وی آر کریٹو. ٹھیک ہے. اب یہ وی آر کریٹو آپ بھی لکھ لیں. اس کے بعد اس نے لکھا ہوا ہے جی، یہ ایک اس نے بنایا ہوا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے، کوئی آئی کا کیا کہتے ہیں ایلیمنٹ لے کے اس نے بنائی ہوئی ہے یہ. تو یہ لیں جی، ہم نے بھی ایک ایلیمنٹ لے لیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس نے اس کے اوپر لکھا ہوا ڈیجیٹل مارکیٹنگ. یہ جو ایلیمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا آپ سائز یوں کر لیں. ٹھیک ہے. اور یہاں ڈیجیٹل کی جگہ آپ لکھ دیں گے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا. اچھا، اب یہ نیچے چلا گیا. نیچے چلا گیا تو اس کا سائز آپ کم کر لیں.
वी आर क्रिएटिव सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, ये सारा मैं उठा लेता हूँ। अब आपके पास प्रो वाले तो शो हो ही रहे होंगे ना, यूज़ आप नहीं कर सकेंगे, तो आप उसमें से डिज़ाइन का आइडिया लेके तो उसको आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जैसे ये आ गया, ये भी हो सकता है कि जैसे अभी हम देख रहे थे कुछ पेजेस के लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं, डिज़ाइन इसके अच्छे हैं लेकिन इसने थोड़ा सा फ़ॉन्ट सही यूज़ नहीं किया हुआ, पढ़ा नहीं जा रहा, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, आप भी इस तरह से देख के बना सकते हैं पोस्टर। खैर, अब ये लिख दिया गया जी। उसके बाद ये इसने एक पट्टी बना दी है और एक बंदा ले आया है। ठीक है, अब बंदा जो है वो आप कहाँ से लाएंगे? बंदा लाने के लिए आप यहाँ एलिमेंट्स में आए हुए हैं और यहाँ आकर आप क्या लिखें, पर्सन लिख दें या मैन लिख दें। ठीक है, सिर्फ मैन लिख दिया, क्या आता है, कार्टून आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से फोटोज़ पे क्लिक कर दें। ओके जी, ये बंदा आ गया। ज़रूरी नहीं है कि वही बंदा रख लें जो ऊपर है, हमने बंदे की मार्केटिंग नहीं करनी है, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, बाकी आपका जो कंटेंट है वो अपना इस तरफ पुट कर दें। ये कहाँ से बनाया था हमने? ये आप आएंगे एलिमेंट्स में। ठीक है, एलिमेंट्स में आके ये आपको निशान मिल जाएगा, इसको क्या कहते हैं? स्केयर कहते हैं। ठीक है, ओके जी, अब इसने यहाँ लिखा हुआ है जी आवर सर्विसेज। ठीक है, हमारी जो सर्विसेज है, अब देखें कलर स्कीम आपने वही रखनी है जो आपकी लोगो वगैरह की है, ये जो आपने सोची हुई है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि कलर स्कीम भी इन्हीं की फॉलो करें आप, कलर स्कीम आप अपनी रख लेते हैं। बस ये बंदे की शर्ट का कलर चेंज नहीं होगा, मुंह इसका चेंज नहीं होगा, बाकी चीज़ें जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। ओके, अब ये जो कलर है ना, ये बहुत ज़्यादा आंखों को लग रहा है, देख रहे हैं, तो इसलिए कलर आप थोड़ा सा हल्का यूज़ कर लें। ये देख रहे हो पोस्ट आपने बनानी है अभी? हाँ, ठीक है, अब यहाँ पर जी हम लिखेंगे और सर्विसेज। लिखने के लिए हम यहाँ से टेक्स्ट में आके टेक्स्ट उठा लेते हैं। ओके, इस बॉक्स को आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, विड्थ और हाइट इसकी। टेक्स्ट को अगर आपने कुछ स्टाइल वगैरह देने हैं तो आप इसको स्टाइल्स वगैरह भी अपनी मर्ज़ी के दे सकते हैं। अगर फ़ॉन्ट कोई आपने चेंज करना है, इसका फ़ॉन्ट आप चेंज कर लें, आपको कोई लगता है कि कोई बेहतर फ़ॉन्ट है इससे, तो आप वो यूज़ कर लें। ओके जी, सर्विसेज, अब हमें अपनी सर्विसेज मेंशन करनी है जो जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब सर्विसेज में इसने कुछ सर्विसेज लिखी हुई है, इन सर्विसेज में से कुछ हमारे काम की होंगी, कुछ नहीं होंगी, तो हम कॉपी कर लेते हैं, ये आइकन में कॉपी कर लेता हूँ। ये क्या हो रहा है? ओके, बाकी सर्विसेज जो है वो मैं खुद लिख देता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले नंबर पर हम अपनी सर्विसेज में से लिखेंगे, अब कंटेंट आपने जो है वो उठाना है कहाँ से? जो पेजेस आपको बताएं वहां से। तीन पेजेस अभी तक बताएं, एक ये पेज है, एक ये पेज है, और एक वो एंटर मीडिया मार्केटिंग वाला पेज है। ओके, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कंटेंट में फेसबुक मार्केटिंग। अब देखें, एक तो ये है कि मुझे तो पता है क्या क्या लिखना है, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, डेली पोस्ट वगैरह और बहुत सारी चीज़ें। आपको नहीं पता होगा तो आप चैट जीपीटी की हेल्प भी ले लें, आपको चैट जीपीटी से सवाल पूछना आना चाहिए, जवाब बहुत अच्छे देता है वो। चैट जीपीटी पे आगे यहाँ आके हम क्या लिखेंगे, यहाँ मैं लिखता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज। लिखूंगा तो पता नहीं कितनी की सर्विसेज दे देगा, 1000 से ऊपर दे दे शायद, तो मैं कहता हूँ जी 5 सर्विसेज।
सिर्फ 5 सर्विसेज बताए मुझे। शाबाश। अच्छा, अब ये साथ में ना इनको एक्सप्लेन भी कर रहा है। मुझे एक्सप्लेनेशन अगर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ लिखूँगा, हाँ, ओनली हेडिंग्स या ओनली पॉइंट्स। सोशल मीडिया स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, कंटेंट क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड मॉडरेशन, पेड एडवर्टाइजिंग एंड कैंपेन में एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, तो बहुत अच्छे हैं जी पॉइंट्स, इसलिए हम ये यूज़ नहीं करेंगे। ओके, मैंने फेसबुक मार्केटिंग लिख दिया है, और कंटेंट क्रिएशन लिख देता हूँ। अगर ज़्यादा जगह है तो मैनेजमेंट में लिख देते हैं, नहीं इतनी जगह नहीं है। सिर्फ कंटेंट क्रिएशन लिख देते हैं। ओके जी, अब ये दो तरीके हैं, या तो मैं इसके आगे एंटर प्रेस करूं और अगली लाइन में आ जाऊं, ठीक है, और या फिर मैं इसी को कॉपी कर लूं, ये जो मैंने लिखा हुआ है, और इसका एक नीचे पॉइंट बना दूं। मुझे ये डॉट भी साथ चाहिए, तो मैं ये सारा कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर अब हम दूसरा पॉइंट ऐड कर देते हैं, कंटेंट क्रिएशन आ गया, कम्युनिटी इंगेजमेंट। अभी आपको सारी चीज़ों का पता नहीं होगा क्या होता है कम्युनिटी इंगेजमेंट, एडसेंस क्या होता है, फलां फलां, तो नहीं पता कोई बात नहीं, कंटेंट लिखते जाएं, साथ साथ पता चल जाएंगी चीज़ें। आपने अलाइनमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अलाइनमेंट बेसिकली कहा जाता है कि दो पॉइंट्स हैं तो दोनों बराबर आने चाहिए, एक इधर उधर ना जा रहा हो, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा हमारा पॉइंट ऐड होगा जी। अब कुछ लोग कंटेंट क्रिएशन अलग लिखते हैं और पोस्ट क्रिएशन अलग लिख देते हैं। तो पोस्ट क्रिएशन बेसिकली कंटेंट क्रिएशन ही है, कंटेंट का मतलब यही है कि पोस्ट बना के देंगे। जी, पेड एडवर्टाइजिंग, पेड एडवर्टाइजिंग लिखें या कैंपेन मैनेजमेंट लिखें, इनमें से कोई एक चीज़ आप लिखते हैं। पेड एडवर्टाइजिंग लिख देते हैं। अभी देखें, मैं इसको ना कहीं भी मूव कर रहा हूँ तो मुझे 7 लाइनें दे रहा है, लाइनें नज़र आ रही हैं। अब ये लाइनें अलाइन करने के लिए हैं कि ये मुझे दिखा रहा है कि अलाइनमेंट कैसी हो रही है, ऊपर नीचे कहीं ख़राब तो नहीं हो रहा। ओके जी, उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास, लास्ट एक पॉइंट ऐड कर देते हैं। लास्ट में आ रहा है जी हमारे पास एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। जिन स्टूडेंट्स को लैपटॉप वगैरह से यूज़ करना नहीं आता, वो लोग जाके प्रैक्टिस किया करें घर में, लैपटॉप को लेके बैठ जाएं और उस पर काम शाम करें कुछ ना कुछ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो यूज़ करने का। बहुत ज़रूरी है, बेसिक यूज़ आपको आना चाहिए हर सूरत। ओके जी, एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, ये पॉइंट्स आ गए कुछ। अब हमने अपना नंबर वगैरह भी लगाना है, ज़ाहिर है, जैसे इसने अपना वेबसाइट का एड्रेस लगाया है, तो वेबसाइट के बजाय आप अपना नंबर वगैरह लगा दें यहाँ पे। अच्छा, अब नंबर लगाने की तो जगह हमने छोड़ी नहीं है, ठीक है, तो वो जगह हमें बनानी पड़ेगी। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, इसको भी ऊपर ले गए और इसको भी। अच्छा, अब हमारे पास ना, मैं अगर इनमें से एक एक उठा के लेके जाऊंगा तो इनकी जो अलाइनमेंट है वो भी ख़राब हो जाएगी, और ये उठा के लेके जाना भी मुश्किल है। इसके लिए बेहतर ये है कि इन सबको सेलेक्ट कर लें आप, राइट क्लिक करें, और यहाँ पर आपको एक बटन नज़र आएगा ग्रुप का,
ग्रुप कर लें तो ये सारे इकट्ठे हो गए अब। ठीक है, अब इनको उठा के हम यहाँ ऊपर ले आए। अब इनमें से ना अलाइनमेंट थोड़ी सी ख़राब है कि किसी की स्पेसिंग ज़्यादा है, किसी की कम है। उसके लिए राइट क्लिक करके उसको दोबारा अनग्रुप कर लें। ठीक है, और अब आप चीज़ों को सेट कर सकते हैं। यहाँ से जूम करके आपको ज़्यादा बेटर नज़र आ जाएंगी चीज़ें कि क्या गड़बड़ हो रही है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे जी। अब हमने अपना यहाँ नंबर लगा देना है। ठीक है, एड्रेस भी लगाएं, ठीक है, नहीं लगाएं तो खैर है, नंबर लाजमी है। नंबर के बगैर वो कांटेक्ट कैसे करेगा। उसके लिए एलिमेंट्स में आ जाएं। एलिमेंट्स में आने के बाद अच्छा, नंबर के साथ साथ एक और चीज़ की इसमें कमी महसूस हो रही है, वो क्या है? लोगो। अब लोगो तो बेसिकली या इधर लगेगा टॉप पे या इधर लगेगा, इन दोनों में से किसी एक जगह लगेगा। लोगों के लिए हमने जगह नहीं छोड़ी। ओके जी, मैं इस तरफ लगा देता हूँ, बस काफ़ी है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पेज पे चलेगी तो पेज का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो लोगों में बहुत लंबा आपके पेज का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है। लोगों के लिए बस इतनी जगह आपकी बचती है, थोड़ी सी ज़्यादा बच जाएगी। अच्छा, अब हम क्या लिखेंगे जी? नंबर लिखेंगे। उसके लिए एलिमेंट्स में आते हैं और यहाँ से आके अच्छा, एक और ऑप्शन मैं आप लोगों को बता दूं ज़रा। अब देख, ये जैसे ये पिक्चर है, इसको ना मैं ख़त्म करता हूँ और ये मेरे पास है एलिमेंट्स के अंदर भी, इसको हम फ्रेम कहते हैं, फ्रेम। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब इस फ्रेम को ना मैं यहाँ सेट करता हूँ। ठीक है, और इस बंदे को मैं उठा के इस फ्रेम के अंदर रख देता हूँ। अब ये सर्कल में बन जाएगा। अब ये बंदा ये पूरा नहीं आ रहा है, कोई कंप्यूटर वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ होगी तो वो पूरी आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं हम सर्च करता हूँ लैपटॉप। लैपटॉप में जाके फ़ोटोज़ में जाता हूँ। अब ये लैपटॉप की पिक्चर्स आ रही हैं बहुत सारी ना। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये वाली पिक्चर मैंने लगानी है, तो ये आ गई है। नहीं समझ रहे बात? पता चल रहा है? ठीक है ना। तो इस तरह से हम उस अंकल के बजाय ये तस्वीर का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। अच्छा, अब हम नंबर लगाने लगे थे, उसके लिए भी हमने क्या करना है? ये एलिमेंट्स में आके मैं पहले व्हाट्सएप का जो आइकन है वो यूज़ कर लेता हूँ। ओके, ये वाला आइकन यूज़ कर लेते हैं, बिजनेस व्हाट्सएप का। जब आप व्हाट्सएप का लगा रहे हैं तो फिर आपको साथ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कॉन्टैक्ट अस या इस तरह से कुछ, क्योंकि इस आइकन का मतलब ही यही है कि भाई रब्ता करो। ठीक है, इस सबको समझ आ रहा होता है ये आइकन। ओके जी, अब हम नंबर लगा देते हैं, इसको सेंटर में ले जाएं या यहाँ रखें, जैसे मुनासिब लगे रख लेते हैं। मोबाइल नंबर लगाते हैं। नंबर आप लोगों का अच्छा नज़र आना चाहिए सही तरह से। कलर इसका थोड़ा सा हम डिफरेंट कर देंगे। अच्छा जी, कलर जो है इसका हमने और कोई कलर यूज़ नहीं किया। इसको भी मैं ख़त्म करूँगा, ये कलर भी जो है ना लोगों के साथ मैच नहीं कर रहा। इसकी जगह पे मैं बैक पे ये पेंसिल वाला टूल मैंने बताया था, पेंसिल पे जाना है। ये वाला कलर यूज़ कर लेता हूँ मैं। ये तो बहुत बुरा लग रहा है।
بلیک کر لیں؟ کیوں بلیک کیوں کروں؟ اچھا، ویسے یہ بھی ٹھیک ہی لگ رہا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ اگر ہم چینج کر دیں، نہیں یہ نہیں، یہ اور اس کا کلر بلیک کر دیں. ہوں، یہ بھی بلیک ہونا چاہیے نا. اوکے. ٹھیک ہے. اچھا تو اس کا جو کلر ہے وہ ہم کوئی اور کر لیتے ہیں. یہ کلر کر لیں، نظر نہیں آ رہا صحیح. افیکٹس لگا لیتے ہیں اس پہ. یہ افیکٹس والا آپشن ہے، یہاں سے کچھ آپ کو افیکٹس مل جائیں گے اچھے اچھے. فار ایگزامپل یہ والا افیکٹ میں نے یوز کیا ہے، تو مجھے اس میں کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے افیکٹ کے اندر کلر کون سا یوز، ڈائریکشن. دیکھ رہے ہیں کچھ؟ یہ افیکٹس وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں ہم، تاکہ نمبر ہمارا صحیح نظر آئے. اچھا جی، اس کے بعد ہم نے لاسٹ میں کیا لگانا ہے؟ ایڈریس. ایڈریس کے لیے جو آئیکن ہوتا ہے وہ لوکیشن کا آئیکن لگاتے ہیں. یہ والا آئیکن میں یوز کر لیتا ہوں. اس کا اگر کلر چینج کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. شیڈو بھی دے رہا ہے ساتھ اس کے. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. اوکے جی، تو لوکیشن میں ہم اپنی لوکیشن ایڈ کر دیتے ہیں. ایڈریس بے شک چھوٹا بھی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں، نمبر واضح ہونا چاہیے. سب کے کلر چینج کیے، یہ اکیلا رہ گیا، اس کو بھی چینج کر دیتے ہیں. اوکے جی، تو یہ ہماری ایک پوسٹ ریڈی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو شروع میں پوسٹ بنانے میں کچھ ٹائم لگنا چاہیے، گھنٹہ لگ جائے، 2 گھنٹے لگ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پوسٹ اچھی بننی چاہیے. یہ نہیں ہو کہ بس آپ اٹھائیں اور اس کو بھیج دیں کہ بھائی میری طرف سے جیسے بننی تھی بن گئی ہے، اب خود سنبھالو اس کو. ہوں. اچھا جی، اب ہم اس پوسٹ کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو ہم ہمارے فیس بک پیج پہ جا کے اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان دونوں میں اسپیس زیادہ ہے اور ان دونوں میں کم ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا چاہیے. اب یہ پیڈ ایڈورٹائزنگ والا سینٹینس باقیوں سے چھوٹا ہے، اس کو ویسے سب سے اینڈ پہ آنا چاہیے، لیکن کوئی بات نہیں، ابھی لگا دیا تو.
اچھا جی، اب اس کو ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے جی، اب یہ ہمیں نظر آ رہی ہے پوسٹ.